કેમ છો બધા? હેપી ન્યુ યર. હેપી ન્યુ યર. હેપી ન્યુ યર. ખાસ હેપી ન્યુ યર. 2078 નું પહેલો આપણો પ્રોગ્રામ. હા, સરસ છે. પણ બધા તમે તો કાયમી સરસ આવો છો એટલે ગ્રેટ. ના ના, અને તપનભાઈ મજા આવે છે યાર, નોલેજ મળે, ઘણું જાણવા મળે. એનો આપણે જેટલો ઉપયોગ કરીએ એટલું બીજાને પણ શીખવીએ એટલે સારું રહેશે. તપનભાઈ, મોહિતભાઈ આવી જાય તો તરત કહેજો. હા, ધ્યાન બહાર ના રહે એટલા માટે પ્લીઝ. હા, ના, આઈ એમ ઓલરેડી હિયર. ઓ મોહિતભાઈ દેખાઈ ગયા. હા પ્લીઝ. Yeah. સોરી મોહિતભાઈ. સો નોટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ, આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ પ્લીઝ. Hello everyone, happy new year. And I, on behalf of GIS, welcome you all in the 10th year and more south after the talk series Innovation is the Life 13 sessions. The series is well received by students, academics and industry people. As you know, GIS is working towards the India. With this, I also found. With this, I also would like to take note that the series is powered by Wellspan Group, and we are thankful to them for joining this movement of innovation, wherein we reach more than 3.3 lakhs people, like-minded people, I should say. And the series is supported by movement partner Gujarat State Plastic Manufacturer Association, Gesia IT Association, Gujarat Dye Stuff Manufacturer Association, Gujarat Chemical Association, Gujarat Pharmaceutical Association, Indian Drug Manufacturer Association, GUSEC IIC, PDPU IIC, Ganpat Innovation Center, Computer Society of India, and iHub. Now coming to our guest speaker today, Dr. Mohit Gambhir, Director of Innovation, Ministry of Education's Innovation Cell, Government of India. He is known for his tremendous contribution in the streamlining and strengthening the innovation ecosystem in the education space in India. He spearheads Government of India noteworthy initiatives like Smart India Hackathon, Toy Hackathon, multiple international initiatives like Singapore India Hackathon, Asian India Hackathon, India UNESCO Hackathon, to name a few. So he's the person who he's also known as Hackathon Man of India. So that's a great initiative he has taken. He had council across India in the higher education institutes ARIIA ranking, first ever ranking of institutions on innovation achievements. UKIT 2.0, India's first and only project collaborative collection platform, framing of national innovation and startup policy, a unique initiative named Kapila Kalam Program for IP literacy and awareness, named after the Indian ex-president Dr. APJ Abdul Kalam. This program aims to increase the number of patents filing from higher education institutes in India, to name a few. He is a member of many high-level government committees for various ministries. He is a seasoned entrepreneur, investor, advisor, patent expert, and lifelong learner with 21 years of multitudinal experience, and he has many patents on his own name as well. So we know whom we are. So I invite Dr. Mohit Gambhir ji to give us valuable inputs in our lives and share his knowledge. Please, Dr. Mohit. थैंक यू। धन्यवाद गुजरात इनोवेशन सोसाइटी और फाउंडेशन, जिस हिसाब से हम लोग ये मीटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, आई एम श्योर जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, हम एंड ऑफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी जाना चाहते हैं, लोगों को बताना
भी चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं के पात्र है कि हम इनोवेशन की बात करते हैं, बहुत जगह टेक्नोलॉजी के बारे में ही लेकर आते हैं, बट इनोवेशन लाइफ है, इस टॉपिक को सेल्डम टच किया जाता है, कभी कभी ही टच किया जाता है कि इनोवेशन जीवन है। नवाचार जिसको हम अगर बोलूं हिंदी में तो नवाचार हम सबका जीवन है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर या अद्भुत विषय जिसके ऊपर हम शायद बात करने वाले हैं। और शाह भाई, मेरे पास आई बिलीव 20 मिनट्स 20 मिनट का समय है और मैं चाहूंगा कि लोगों को कुछ कुछ ऐसी चीजें बताओ जिसमें की टेक अवेज हम बोलते हैं कि आफ्टर 15-20 मिनट्स जो हम लोग मेरे से जो सीनियर है, जो मेरे साथ के है या जो आने वाली जनरेशन है, कुछ ऐसा हो, तालमेल हो कि हम लोग एक अपने लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन संसार बना सके हम सब के लिए। ये मेरा ऐसा मानना है और मेरे लिए इनोवेशन या नवाचार की एक परिभाषा या डेफिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ और अपने हर टॉक में बोलता हूँ कि इनोवेशन का मायने है अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाना। इसके बियॉन्ड, इसके बाहर जाके मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। छोटे से छोटे चीज में आप देखेंगे इनोवेशन है। अभी मैं इसमें पढ़ रहा था कि मुझे मिनट सर्कुलेट हुए कि मुझे कुछ प्रेजेंटेशन देना है अब, या उसमें लिखा हुआ था, और जनरली मैं प्रेजेंटेशन करता ही नहीं हूँ। तो फिर मुझे क्या समझ में आया, मैंने कहा अच्छा चलो दो चार कुछ ऐसे स्लाइड है जो शायद मैं अपने जीवन में, जो मैंने कुछ कुछ करता रहता हूँ, आजकल भी करता रहता हूँ, जब उठता हूँ मेरा मानना होता है हर दिन नया दिन है, कुछ भी आप सोचते हैं लेकर आते हैं। और जैसे अभी बताया नीरज भाई ने कि मैं खुद पैटेंट्स वगैरह भी फाइल करता हूँ, आईपी करता हूँ, तो क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ, ये भी बताना बहुत जरूरी है। क्या होता है, अपने यहाँ पे एक भेड़चाल रहती है, एंड आई एम डूइंग अ वेरी कैंडिड टॉक टुडे, तो पार्डन मी, मतलब कभी किसी को मतलब क्षमा प्रार्थी भी रहूंगा ऐसे लगे, बट मैं चाहता हूँ कि सभी गुणीजन है तो हम एक ऐसे वार्तालाप करे और उसमें एक संज्ञान ले आपस में, उसके बाद कि हाँ कुछ हमने आज पाया, कुछ हमारा अचीवमेंट रहा। तो बहुत पुराने अगर अपन उस पे जाए, हम बोलते हैं हमारी भारतीय संस्कृति बहुत रिच है, बहुत ही संपन्न है, लेकिन ऐसा क्या था कि विलुप्त भी हो गए। हम बहुत सारी चीजों को हमने बिल्कुल ही विलुप्त कर दिया, कुछ आगे मिला नहीं, कुछ आगे पाया नहीं, और आज हम फिर से उस पर मेहनत करना शुरू हुए हैं, बहुत सारी चीजों को हम पाना शुरू हुए हैं। ऐसे कुछ प्रोग्राम है जो कि हम अपने यहाँ से मंत्रालय से चलाते हैं, जिसमें अगर किसी ने नहीं सुना हो, स्मार्ट इंडिया हैकाथन नाम का एक प्रोग्राम है, जिसके बेसिस पे कह लीजिए कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार और आगे भी जो उनका आशीर्वाद रहा, शिक्षा मंत्रालय ने एक नवाचार प्रकोष्ठ, इनोवेशन सेल एस्टेब्लिश किया। और हम स्मार्ट इंडिया हैकाथन के माध्यम से क्या करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम बात करें, और इसके बाद से अभी हैकाथन आप देखें एक ऐसा वर्ड हो गया है कि पूरे देश में जगह जगह, एवं गुजरात में भी काफी फैला, हर यूनिवर्सिटी में, सिटी में कहीं स्मार्ट सिटी हो रहा है, या वो वडोदरा सिटी हैकाथन, ये सब बहुत ज्यादा चलन में आया। पर इसको प्रचलित करने का अगर मैं बोलूँ श्रेय, तो बिना किसी हिचक और संकोच के मैं लेता हूँ। वो इसलिए कि 2017 में जब हम लोगों ने ये शुरू किया और किसी से बात करते थे हम लोग, तो लोगों को पता भी नहीं होता था कि भाई हैकाथन क्या होता है, और उसमें ऐसे समझ में आता है कि हैकाथन का मतलब कुछ कहीं तो हैक करने वाले, कुछ तो हैक करेंगे, कुछ तो गड़बड़ करेंगे, राइट। पर फिर हमें समझाना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस रिसर्चर हूँ और उसके साथ साथ एक लॉयर भी हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, पैटेंट्स का। तो मैं फिर समझाता था कि देखो ऐसा ये हैक वैक कुछ नहीं होता है, इट इज नथिंग टू डू विद हैकिंग, इट इज टू डू विद, लाइक हम मैराथन करते हैं वैसे कुछ हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, तो और नॉन स्टॉप प्रोग्राम करते हैं, कुछ कुछ हम चीजों का सोल्यूशन ढूंढते हैं और उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो समझाया गया। शुरू जब हुआ तो कुछ जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है, केंद्रीय मंत्रालय है, वहां से हमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिले, और लगभग हमारे पास पहले जो इसका हमारे पास एडिशन रहा, तो वी हैड समवेयर अराउंड 40,000 के करीब बच्चों ने देश भर से पार्टिसिपेट किया। अब वो हमें बड़ी सफलता लगी, हमने कहा यार कमाल है कि अब इतना जल्दी और एक ही पहले ही एडिशन में वी हैड सच अ काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम यूथ।
we decided to make it more formal. Reach to 2018, 2018 के एडिशन में अभी वो नंबर बढ़ के 70,000 हो गया। तो हमें समझ में ये भी आया कि देश का जो युवा है, जो स्टूडेंट है, अगर उसको राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी मिलना प्रोवाइड कराया जाए तो दे हैव सो मच ऑफ एनर्जी विद देम कि वो कुछ भी करने को कैपेबल है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हाट वी ट्राई टू सोर्स इज लाइक व्हाट ऑल आवर मिनिस्ट्रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वर देयर। एग्रीकल्चर है या आयुष है, लाइक कृषि मंत्रालय में कुछ किसी को दिक्कत है तो वहां से कुछ प्रॉब्लम ले लिया, आयुष में कुछ दिक्कत है, शिक्षा मंत्रालय में कुछ है, अलग अलग ऐसे मंत्रालयों से हम लेते थे। तो अब हमें समझ में आया कि अभी राज्यों पे भी चलना चाहिए, तो 2018 में राज्य पे गए, अभी हम आगे बढ़े। अच्छा, इसके जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट एडिशन बहुत भयंकर हो गया वो। उसमें मैंने सोचा कि अभी, अच्छा मेरा कुछ ऐसे रहता है विषय में कि हर साल हर अगले एडिशन में कुछ ना कुछ नया करते जाओ। तो मेरी कुछ जो अगर हम बोले तो फैमिली उसमें देखे या मेरा पर्सनल भी अगर आप ट्रेड देखें तो आई एम एन एंटरप्रेन्योर, जैसे नीरज भाई ने बोला अभी। तो और काफी कुछ मैं देखता रहता हूँ। और ये भी जो चार्ज है गवर्नमेंट का, इट्स माय सेकंड स्टेंट विद गवर्नमेंट। तो आई मूव्ड आउट ऑफ गवर्नमेंट इन 2005 and I worked for Fortune 5 company in US for a couple years and then I started doing my own companies. अपना काम खुद का शुरू किया, एक कंपनी करी, दूसरी कंपनी करी, फिर तीसरी कंपनी करी। अभी फिर 2017-18 जब आ गया तो लगा अभी गिव बैक टू कंट्री करते, तो वापस अभी देश के लिए कुछ 3-4-5 साल देते हैं और वही मैं काम अभी कर रहा हूँ। तो कई बार लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मोहित भाई कैसे चल रहा है सब, कैसे आपको लग रहा है। मैंने कहा यार देखो, बहुत आनंद में हूँ, क्योंकि भारतवर्ष में ये कहा जाता है कि जब आदमी रिटायर होता है, एक इंसान रिटायर होता है, तो वो काम करता है जो जिसमें उसको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। यानी कि वो पूरे जीवन भर कुछ ऐसा नहीं कर पाया था, तो वो इंतजार करता है कि अभी मैं कब फारिग हो जाऊं, कब मैं रिटायर हो जाऊं और कब वो काम करूं जिसके लिए 30-35-40 साल से मैं इंतजार कर रहा था, राइट। So now, whenever somebody asks me, I am doing it today. क्योंकि मैंने जैसे ही कुछ एक नाम பேசலாம் மாட்டேன் இல்ல இல்ல அவர் மூவி ஸ்பீக்கிங் நோ நீங்க பேசலாம் then speaking we need to mute somebody. Yeah, thank you so much. Right. तो अभी क्या, जब मैं अभी कुछ कोई भी पूछता है तो वो मैं बोलता हूँ कि क्या 24 घंटे क्या 26 घंटे क्या कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं वो कार्य कर रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत आनंद आता है। तो इसलिए मैं अपना रिटायरमेंट का टाइम जी रहा हूँ। अच्छा, अब इस फेज में हमने क्या किया, स्मार्ट इंडिया हैकाथन का ही मैं जो उदाहरण दे रहा था, अगला एडिशन आया। अब हम अगले एडिशन में, आप लोग को बहुत अचंभा होगा, बहुत अचरज भी होगा ये जान के, यू विल बी सरप्राइज टू नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द वेरी थर्ड एडिशन, 3,54,000 across the country. It crossed all miles. अभी ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल बनने के कगार पे आ गया। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य मंत्रालय, स्टेट जो डिपार्टमेंट्स है, प्राइवेट कंपनीज हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना शुरू हो गए। बहुत सारे कंपनी से अलग अलग हम लोग करते हैं। अहमदाबाद में हमारा सेंटर बनता है, हमारे पास डिपार्टमेंट्स लाइक इसरो बहुत अच्छे से हमारे साथ हमारा पार्टनर बनता है, DRDO है, आप इट्स लाइक यू नेम इट वी हैव इट। अच्छा, और मजे की बात कि जो टीम इसमें विनर होती है हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, उसको 1 लाख रुपए का प्राइस दिया जाता है। सॉफ्टवेयर वर्जन करते हैं, हार्डवेयर वर्जन करते हैं। तो हमने कई ऐसे उसमें से चीजें देखी कि बच्चे जो सोल्यूशन लेकर आते हैं, जो हायर एजुकेशन के हैं, जो कि बहुत ही आउट ऑफ द लीग, एकदम क्लास सॉल्यूशन आता है। अभी क्या होता था, आज से पहले कई अक्सर पूछते हैं कि इसका क्या, आपने एक प्रोग्राम किया और प्रोग्राम करने के बाद क्या। तो अब हमने उनको इंक्यूबेशन सेंटर के साथ अटैच करना शुरू किया। जो लोग कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से है, जो लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं, बिजनेस फैमिली से आते हैं, वो शायद समझ पाएंगे कि कितना एक मुश्किल होता है किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को एक खड़ा करके ले जाना। और मैं ये बोलता हूँ कि इतने अभी पिछले जो एडिशन है, आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वी हैव 12 सक्सेसफुल स्टार्टअप रनिंग एंड फ्यू मोर आर कमिंग इन एंड वी हैव मोर देन 90+ IP फाइल्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इवेंट। जो कि अगर हम देखें, क्योंकि मैं खुद एक पैटेंट्स का आदमी, तो मैं महसूस करता हूँ कि हमारे देश के लिए, अगर जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना है, तो मेरा पर्सनली मानना है बौद्धिक संपदा को अगर हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो बहुत चैलेंज है।
बौद्धिक संपदा एक ऐसी चीज है जिसमें आज वो बौद्धिक जो हमारे सोच है, थॉट प्रोसेस है, वो भाषा देख के नहीं आती है, वो कोई चीज नहीं आती है, वो फाइल होगा। तो मैं अपना ही नहीं, अपने साथ साथ अपने भारतवर्ष का भी बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहा हूँ। तो इसीलिए अभी जैसे नीरज भाई ने कहा, तो मेरे फिर से एक और थॉट प्रोसेस है कि ऐसा क्यों ना किया जाए, एक प्रोग्राम लॉन्च करा जाए। आप लोग फिर से जान के अचंभित होंगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो, चाइना फाइल्स मोर देन 15 लाख पैटेंट्स एवरी ईयर। 15 लाख से ज्यादा पैटेंट फाइल करता है। यूएस फाइल्स समवेयर अराउंड 6 to 7 लाख पैटेंट्स, पहले ही आधा हो गया। अभी भारत के अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो जो लोग समझ पाएंगे कि उसका कितना हम कहा है, 50,000 भी नहीं है। वी हैव अ काउंट ऑफ 46-47,000। कैन यू जस्ट इमेजिन? इन मतलब सोच के देखिए, आने वाले समय में जब हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा चीज जो कि देश को ड्राइव करने वाला है, हम अपना ही बाजार, अपना ही सारा का सारा मार्केट ओपन करके छोड़ देंगे आज भी। और इसमें से भी मजे की बात, 50,000 भी अगर मैं पकड़ के चलूं जो पैटेंट फाइल होता है, उसमें से भी 80% बाहर के लोग आके इंडिया में फाइल करते हैं। इंडिया के लोग, भारत के लोग जो है वो फाइल नहीं करते। वो बढ़ाने के लिए मैंने कहा अभी कुछ यहां से करते हैं, जब तक ये जिम्मेवारी है। तो एक टारगेट लिया, 10,000 पैटेंट फाइल कराएंगे अपने मंत्रालय के थ्रू, एक प्रोग्राम लॉन्च किया। कई लोग इसमें फिर से भी बात करते हैं कि मुझे आप ऐसे कर रहे हो, कुछ बहुत हल्का पैटेंट फाइल होगा, ये होगा। ठीक है, मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि देखो, इसको कंपेयर करो, एक जैसे नवजीवन आता है, लाइफ फॉर्म आती है। सबसे पहले क्या होता है, आने के बाद एक हम उसको लेते हैं, माँ उसको पालती है, थोड़ा सा चलता है, फिर धीरे धीरे वो घुटने बल चलना शुरू होता है, फिर पैरों बल खड़ा होता है, फिर वो और कदम बढ़ाता है, फिर भागना शुरू होता है। तो हमने कहा एक चक्र है, एक समय है। आज अगर मैं ये पुश कर दूं कि मेरे पास इतना आईपी फाइल करना है, हो सकता है बहुत ही लेम, पुअर, सब इस तरीके का फाइल होगा, दैट्स ओके। बट द पॉइंट इज वी आर टीचिंग आवर सिटीजन्स दैट टूटेंगे, फूटेंगे, चोट भी लगेगी, लेकिन 3 साल 4 साल में एक समझ आएगा कि मुझे उसको किस तरीके से ऐसा प्रोटेक्शन देना है कि वो सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, ग्लोबल मार्केट लेवल पे किस कंट्री में जाना है, तो वो मार्केट खुलता है। अच्छा, दूसरी चीज, बाहर के जो कंपनी मेरे आने चाहती है, या जो भी व्यापारी लोग बाहर, तो उनके लिए अभी मैं अपने मार्केट में पहले से ही, अगर वो मैंने आईपी फाइल करा हुआ है, तो ओपन मार्केट पैदा कर दिया है। मान लीजिए खराब आईपी है, नहीं ग्रांट होता, रिजेक्ट होता है, पर वो क्या होता है, पहले से अगर ओपन है या अवेलेबल है, दैट मीन्स इट्स एन ओपन मार्केट, वो किसी का मोनोपोली राइट नहीं बन पाता। तो ऐसा अगर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, हमें सोचना बहुत जरूरी है। रादर हम ये बोलते हैं कि लुक वेस्ट, लुक ईस्ट, तो दैट इज ओके, वी शुड बी अवेयर ऑफ, हमें जागरूकता होनी जरूरी है। लेकिन उस जागरूकता के साथ सबसे पहले ये चीज जरूरी कि हम अंदरूनी तौर पे कितने मजबूत है, हमारा अपना जो सिस्टम है, हमारा जो अपनी कैपेबिलिटीज है, वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी आर टेकिंग आवर सिस्टम, ओवरऑल इकोसिस्टम टू मूव अराउंड। मेरे देश की क्या जरूरत है, अभी साथ के साथ अभी हो सकता है गुजरात में एक चीज बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है, वही चीज जरूरी नहीं है कि हरियाणा या पंजाब में या राजस्थान चले जाए, या फिर मैं यूपी जाऊं तो इंप्लीमेंट हो। तो क्या मुझे वो सिस्टम ऐसे मजबूत करने की जरूरत है, और जब मेरे अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत तरीके से अटैच होके, इंप्रूव होके, सुदृढ़ होंगे, स्ट्रांग होंगे, देन स्काई इज द लिमिट। इनोवेशन यही एक ऐसी चीज है। अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूं, और मेरे को लगता है कि सभी लोग सोचेंगे उसके बारे में, और थोड़ा सा सरप्राइज भी होंगे कि कैसे बहुत चीजों से देखेंगे तो देखिए लाइफ फॉर्म निकल के आता है। इज माय स्क्रीन विजिबल?
तो ख्याल से मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट। आप देखेंगे तो इसमें एक आपको घड़ी दिखेगी, अभी दिखी थी पीछे जो है, एक छोटा सा वॉच फॉर्म है। मैं इसका आपको पर्पस दिखाता हूँ। ये मैंने और मेरे वाइफ ने मिलकर ड्यूरिंग कोरोना के टाइम पे हम लोग कुछ सोचते थे कि भाई सैनिटाइजर हम यूज करते हैं, ऐसा क्या है, बच्चों को कैसे दे, छोटे छोटे थैली पॉकेट ये सब में बना के देते हैं, हर 30 मिनट में उनको कुछ करना है, तो कैसे किया जाए, ऐसा क्या किया जाए। अभी यही प्रॉब्लम था। नाउ सी व्हाट वी डिड। एक कि जो हर बच्चा बड़ा बूढ़ा हर कोई पहने, तो उसमें से वो हर 30 सेकंड वो 30 सेकंड में कुछ कुछ वहां से, और 30 मिनट बाद जैसे ही घड़ी में हो एक अलार्म बजे, और उस अलार्म बजने के बाद वो हाथ के जो अपर पोर्शन है लोअर पोर्शन है उस पे वो सैनिटाइजर आए, और अपने आप से जो भी हम टास्क कर रहे हैं वो हम टास्क बंद करें और काम हमारा फिर से चालू हो जाए। अच्छा, बच्चों के लिए आप देखें, हमने सोचा कुछ ऐसा डिजाइन बनाए, कुछ इस तरीके के लेके जाए, उस पे आप कोई करेक्टर लगा दीजिए, कोई और चीज लगा दीजिए। अभी ये इसका शेप हो गया है जो लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो अब ये देखे नीचे रिफिल करने के लिए उसमें जगह है, कंट्रोलर है, ऊपर इसके अब जो स्पेस है यहाँ पे मैं समय बताने के लिए एलईडी भी लगा सकता हूँ, कोई डोरेमोन जैसा कैरेक्टर भी लगा सकता हूँ। मेरा पैटेंट भी है, मैंने पैटेंट भी फाइल किया हुआ है। अब आप ये देखिए, छोटा सा वो था, इनोवेशन इज लाइफ। मुझे ढूंढना था, मुझे कुछ ऐसा करना था कि मैंने एक ऐसे हाथ में बैंड पहन लिया, हर 30 मिनट पे, क्या 29 मिनट 30 सेकंड पे एक छोटा सा मेरे पास अलार्म बीप बीप बजा। मुझे पता है कि मुझे अभी हर कार्य छोड़ना है, 2 बूंद इधर 2 बूंद इधर, आ गया, मैंने हाथ धोया और अपना चले गया। तो इतना इसमें क्वांटिटी है कि जो 6 घंटे तक के लिए सब घर आए, अपना इधर गए, 10 घंटे के लिए किया, उसका फिर रिफिल कर लिया, फिर चालू हो गए। तो अननेसेसरी हैसल अवॉइड। बच्चों के लिए बड़ा खेल का समय कि ऊपर कुछ डोरेमोन या कोई भी ऐसा करेक्टर लगा दिए, बहुत बढ़िया सी चीज हो गई। दे लव बैंड्स, है ना। अनदर देखिए आइटम, अब ये एक गिटार है। जो लोग गिटारिस्ट है, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, बन नहीं पाते। अब इसमें क्या किया गया, अभी आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे इधर एक फोन दिख रहा है। तो ये मैंने किसी को एडवाइस किया था, कंपनी मेरी नहीं थी, कोई किसी और का, हम लोग प्रोजेक्ट कुछ कर रहे थे, वहां हमने एडवाइस किया। अब इसमें क्या किया, हमने एक मोबाइल ऐप बनाया, फोन के अंदर ऐप डाली, इस फोन को इस इक्विपमेंट में अटैच किया, और हमने इसके बाद ये बोला, दुनिया में कहीं भी कोई भी अभी गिटारिस्ट बन सकता है। अभी कैसे बन सकता है, जो गाना यहाँ चलने वाला है उससे कुछ माइक्रो सेकंड पहले जो नोट प्ले होना है वो वाला एलईडी ऊपर ग्लो हो जाएगा। आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके की एलईडीज है। तो वो एलईडी कुछ माइक्रो सेकंड पहले वहां ग्लो करेगी, उधर मुझे फिंगर प्रेस करना है, यानी कि जितना वो डिस्टेंस है उतनी देर में अगला नोट वहां प्ले हो जाएगा। कोई भी गाना मैं बजा सकता हूँ। थोड़ा सा थॉट, थोड़ी सी इनोवेशन, है ना। अगली चीज देखते हैं। अभी ये भी फिर एक और ऐसे ही हम लोग थे फ्रेंड में। अब क्या होता है, आईवीआर मेन्यू हम बात करते हैं, देखो कई फोन लगाते हैं, किसी से क्या बोलते हैं, प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 3 प्रेस 4, है ना। ये करते रहते हैं, जूझते रहते हैं चीजों से। वी यूज्ड टू लाइक जस्ट वेट एंड फाइट। फिर जिन लोगों को याद रहता है तो वो डायरेक्ट 1 2 7 करके चले जाते हैं। अभी मैंने बोला कि ऐसा क्यों नहीं करें कि हम उसके स्क्रीन के ऊपर ड्रॉप कर दें, मेन्यू ड्रॉप कर दें, कि अरे बाबा ये सब नहीं है, सीधा जाओ एक पेड़ के शेप में या ट्री के शेप में या ऐसे मेन्यू चला जाए, सीधा वहां प्रेस करो, डायरेक्टली मेन्यू से आप प्रेस कर लो। मैंने आईवीआर में कितना समय बचा दिया, छोटा सा इनोवेशन। अभी एक और चीज देखते हैं, ये देखिए ट्रैफिक के लिए, ये फिर से एक हमारे ये वाला प्रोजेक्ट हमारे हैकाथन से आया था, जो लोग देखना चाह रहे हैं। देखिए 3D लाइट सिस्टम है। हाँ, ट्रैफिक हो रहा है ऊपर से, ये अब AI बेस्ड है, ये टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इतना है। लो डेंसिटी हुआ, अपने आप रेड हो गया, बंद हो गया। यहाँ पे लाइट चेंज हो गया। अभी इधर हाई डेंसिटी है तो वहां से ऑटोमेटेड ट्रैफिक चालू हो गया। सब कुछ ऑटोमेटेड, सब सेंस कर रहा है, सब चल रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है। और ये एक जगह पे, एक शहर में, ये लाइव अभी पायलट मोड में चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जीवन में रोजमर्रा के रूटीन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो होती है, जिसको हम कर सकते हैं। अब ये देखिए अपने आप हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी। तो ये सब चीज हम अपने यहाँ से, अपने देश में जब कर सकते हैं, वी आर सो मच कैपेबल इनफ टू डू ऑल दीज थिंग्स, तो हम हिचकते क्यों, हम रुकते क्यों हैं, हम इंतजार किसका करते हैं? व्हाई वी वेट that somebody from somewhere will come and help us? No, we have to help ourselves. तो हम खुद ही उस चीज के लिए मेहनत करते हुए आगे क्यों नहीं बढ़े?
ऐसा मेरा मानना, और उसमें मेरा आई रियली अप्रिशिएट, बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र भी है, लाइक जीएसएफ फाउंडेशन के जो कार्य है, ऐसे और भी फाउंडेशन मैंने नोटिस किए कंट्री में, कुछ कुछ है जो देश के युवा के लिए कुछ आगे कर रहे हैं। अच्छा, एक और मैं पर्सनल लेवल पे बड़ा कार्य करता हूँ, फिर से इनोवेशन की बात कर रहा हूँ, और मुझे पता है समय में थोड़ा ले गया हूँ ऊपर, बट नीरज भाई देंगे मुझे 2-4-5 मिनट और। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लोग बोलते हैं कि यूथ इनोवेशन, स्टार्टअप, नया स्टार्टअप, और मैं ये बोलता हूं व्हाई ओनली यूथ। तो एक मेरा पर्सनल लेवल पे एक मैं प्रोग्राम चलाता हूं श्रवण नाम से, अभी आप लोग फिर अचरज करेंगे, उस श्रवण में क्या है, देयर इज अ सीनियर सिटीजन स्टार्टअप क्लब। अब मेरा ये मानना है कि जो इंसान, जो जीव 30 साल 35 साल लगा के पूरे नॉलेज को गैदर कर चुका है, द मोमेंट सडनली हम उस नॉलेज को कैसे भुला सकते, और क्यों भुलाना चाहिए? एक्चुअली ज्ञान का सोर्स तो वही है। जो यूथ है वो तो अनेबलर है। जो 30 साल में 35 साल में अगर पूरा जीवन एक टेक्नोलॉजी, एक फील्ड में लगा के जो आदमी सीख के बैठा है, उसको तो रियल प्रॉब्लम पता है। उस रियल प्रॉब्लम को कारण क्या था, उसके अपने चैलेंजेस थे जो वो उसका सोल्यूशन नहीं बना पाया होगा। आज क्यों नहीं मैं वो मिटिगेट करूं, मैं उसको क्यों नहीं घटा के उसको ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊं कि जो चैलेंजेस उनको रियल टाइम पता थे उनको सॉल्व करा पाए। तो वो एक अलग चलता है। उसमें आप ये जाने कि बहुत ऐसे लोग बोलते हैं वृद्धजन, तो एक हमारे इंडिया में अभी टर्म नया है, बट अगर हम यूरोप जाते हैं तो इट इज नोन एज सिल्वर इकोनॉमी। जिनके बाल सिल्वर हो गए, सिल्वर, तो वो सिल्वर इकोनॉमी, ठीक है। तो ना सिल्वर इकोनॉमी पॉइंट है, तो मैं उसको बोलता हूँ मॉडिफाई करके कि बाबा सिल्वर नहीं है। तो नॉर्वे में आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड, मैं कहा नो इट्स नॉट सिल्वर, इट्स प्लेटिनम इकोनॉमी। जस्ट इमेजिन, अभी वो, मैंने कहा तुम्हें क्या, वो अमूल्य है। हम AI बना उसको चाहते। अभी मेरे घर में दादाजी हो गए या मेरे पिताजी हो गए या कोई ऐसे करके रहे, उनको ये पता है कि फलानी चीज में क्या दिक्कत है, उसका सोल्यूशन लाओ, नया स्टार्टअप खड़ा हो गया। तो दैट्स अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम आई एम ट्राइंग टू बिल्ड। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई वेयर विथल नहीं है जहां मैं जाके बोलूं कि अच्छा मुझे आज खुद ही देखिए, अगर अगेन दिस प्लेटफॉर्म मे नॉट बी राइट, इफ आई एम 70 years old एंड ऐसे मुझे स्टार्टअप करना है, मेरे ख्याल से 99.999% लोग कहेंगे क्या करने को चला है यार, बताओ। राइट, ऑन द कॉन्ट्ररी आई से अरे बाबा करना है, बहुत ही वेरी गुड, आ जाइए, अभी मुझे मिल गया प्रॉब्लम, क्या करना है मुझे, तो मेरा चिराग मिले अभी, है ना। तो ऑन द सिमिलर नोट, until and unless we establish a kind of inclusive society, जहां हम ये बोलते हैं कि अगर इंसान रिटायर होके, अभी क्या आज खत्म होके नौकरी से आए तो क्या काम चालू है, अखबार पढ़ना, चाय पीना, गए गप्पा लड़ाए वापस आए, नहीं, उसकी जगह अगर ऐसा इकोसिस्टम हम एस्टेब्लिश कर पाते हैं, तो आप सोचे कितनी बड़ी इंक्लूसिवनेस हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सब लोग जुड़े हुए हैं, यूथ सीनियर सिटीजन से जुड़ा है, बीच के जो लोग हैं जो कारीगर है, काम कर रहे हैं, अगर उनको मेंटरशिप देना है वो जुड़े, वो एज अ मेंटर आते हैं मेरे प्रोग्राम में, वो देखते हैं कि अच्छा इसको ये करना है, तो यानी कि स्किल्ड काम कर रहा है, मेंटर मेंटरिंग दे रहा है। और जो 60 और 70 ईयर का जो जीव है, जिसने अपने पूरे जीवन चक्र में सोचा था मैं कुछ करूंगा, वो काम करना जा रहा है। So that's a kind of inclusiveness we should establish to create a wonderful world. And I believe यही सब मेरे लिए इनोवेशन का मायने है। और आज का शायद ऑब्जेक्टिव मैं अचीव कर पाया होगा। मैं समय के बिल्कुल घड़ी पे पाबंद पे देख रहा हूँ, टिक टिक कर रहा हूँ। बहुत बहुत सभी को हार्दिक धन्यवाद। और आई एम प्रेटी होपफुल कि आई डिड जस्टिस, मैंने कुछ निर्वाह किया होगा आज के वार्तालाप से। बाकी नीरज भाई बताएंगे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जी, आपने बहुत गहरी बात कही थी, बहुत हल्के से। जो इनोवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, मैं भी पैटर्न का आदमी हूँ और मेरे को भी मेरे नाम पे सबसे ज्यादा पैटर्न है, ऐसा कुछ मैं बता सकता हूँ आपको। तो लेकिन नीरज भाई आप मेरे से कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि आज से 18 साल पहले मैं ये सोचता था मुझे कोई फाइनेंस कर देना तो मैं रोज के 10 पेटेंट फाइल करूं। मेरी भी हालत ऐसी थी, लेकिन मेरे को बाहर से सपोर्ट अच्छा मिला था। दैट टाइम इंडिया इज द नॉट सिस्टम, लेकिन आप जैसे लोगों ने इंडिया का सिस्टम बढ़िया बना दिया है, दैट्स अ ग्रेट। और ये सबसे बड़ी चीज आपने बताई कि इनोवेशन कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में करना चाहिए, और जब भी आइडिया मिले, छोटा बड़ा सब कुछ। और आपने बहुत सारे छोटे से एग्जांपल्स लिए, लेकिन बहुत डीप में ले लिया, जैसे घड़ी वाला एग्जांपल है या डेंसिटी वाला है, जो देयर इज रियली रिक्वायर्ड इन ट्रू लाइफ ऑल्सो। तो मैं आपको एक
गुजारिश करूंगा कि ये सारे इनोवेशन जो हो रहे हैं इनको पर्सनली फ्रॉम माय साइड एंड द पीपल लाइक मी वांट्स दैट के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाए, जितने भी प्रोजेक्ट्स या हैकाथॉन के आउटपुट्स है ना, वो दैट इज द रियली रिक्वायरमेंट इसी पे मैं इनपुट यही दे देता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। अभी हमने 44 ऐसे प्रोजेक्ट को फंड किया है विद 10 लाख सीड मनी, क्योंकि मेरा खुद का भी उद्देश्य यही है। अगर अल्टीमेटली हम आउटकम नहीं लेकर आ पाएंगे तो एवरी एक्सरसाइज बिकम्स फ्यूटाइल। वो सब फ्यूटाइल, वो सब वेस्ट ऑफ एफर्ट एनर्जी है। अगर 500 में से एक स्टार्टअप, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें 100, 500, 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के कुछ दिशा दशा दे पाए, मेरे लिए वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है। आई सेकंड योर थॉट्स एंड वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट। वी ऑल्सो GIS इज ऑल्सो वही नेचर में जा रहा है, लेकिन आप तो पोजीशन पे हो तो हमने और एक बार रिक्वेस्ट डाल दी, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने जो भी डीप इंसाइट दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, इंस्पायरिंग रहा हमारे लिए, एनलाइटिंग भी रहा। एंड जो हम लोग इनोवेशन का जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं हम लोग GIS के थ्रू, उसमें आपने और 4 चांद लगा दिया आज के दिन पे कि वो परफेक्टली आपके लेवल से आपने टॉक दिया, एंड दैट्स थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मेरा थैंक यू वेरी मच। बहुत सौभाग्य। उसके अलावा मैं आपका आप फिर से हमारे यहाँ वहाँ आए, बहुत सारे और एग्जांपल या लाइव प्रैक्टिकल हैकाथॉन को लेके आए, ऐसी हमारी गुजारिश है कभी जब भी मौका मिले तब। एंड उसके अलावा मैं हमारे सारे इनोवेशन मूवमेंट पार्टनर्स, खास करके वेल्सपान ग्रुप है जो अभी ये इवेंट स्पॉन्सर कर रहा है, उनका भी मैं आभार मानना चाहता हूँ। और हम लोग ये सारे जो भी नॉलेज सीरीज चलाते हैं, जितने सेशंस, उसको GIS के YouTube चैनल पे डालते हैं, तो किसी का भी छूट गया हो या किसी को रिफर करना हो तो भी, क्योंकि ये ऐसी टॉक बहुत कम मिलती है जो गंभीर जी ने आज बड़ी आसानी से बता दी, तो दैट इज ग्रेट थिंग। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग हमारे YouTube चैनल पे या सोशल मीडिया पे आइए एंड लाइक कीजिए। और दूसरा, हमारा नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सैटरडे वही टाइम 4 PM है। और सर आपकी परमिशन से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ गंभीर जी, मिस्टर पुमेश अजमानी वेल्सपान ग्रुप के है जो हमारा नेक्स्ट सेशन लेने वाले हैं, तो यही है। एंड गंभीर जी वंस अगेन बहुत बहुत आपका खूब आभार प्रदर्शित करते हुए, मेरे हिंदी शायद अच्छी नहीं है लेकिन आई विल ट्राई कि आपने पूरा हिंदी में लिया तो मैं भी कुछ ट्राई करूं। तो दिस इज अबाउट इनोवेशन आई गॉट फ्रॉम योर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन हु जॉइन्ड दिस प्रोग्राम एंड हैव अ नाइस डे, सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू गंभीर जी एंड ऑल। धन्यवाद।